सभी लोग करिए। ये जानते हैं ये बहुत बड़ी क्रिया है ये। जब कभी तनाव में होइए, बस अपने को पकड़ लीजिए कि यही परब्रह्म निकटतम है, हम भगवान के साथ एक हो जाए। अगर आप ये नहीं मानते हैं कि भगवान आपके रूप में है, तो आप भगवान को छोटा समझते हैं। वही सब रूपों में है, तो पहले तो अपने स्वरूप में है, आप इसको स्वीकार करिए। भगवान का अर्थ हो कृष्ण बंसी वाले नहीं, या राम धनुष वाले नहीं। जो कृष्ण भगवान जिस शक्ति से बने थे वो विष्णु की शक्ति से बने थे, और विष्णु ब्रह्मा से एक होते हैं। तो सिर से पैर की अंगुली तक ये तीनों एक है मान करके इतना बढ़िया स्ट्रेचिंग करिए। पैर के नाखून से लेकर के सिर तक सब में ऐसा खिंचाव हो जो अच्छा लगे। उसी समय नाक से एक छोटी श्वास के साथ एक लंबी श्वास लीजिए। जब मुंह से निकालिए तो एक छोटी सांस, फिर लंबी सांस निकाल एकदम ढीला कर दीजिए। लेकिन जब ढीला करिए जर्की न करिए। जर्की ढीला क्या होता है? कभी कभी अगर 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, किन्हीं नसों में कमजोरी है, तो जर्की रिलैक्सेशन वो डैमेज होती है। तो रिलैक्सेशन जो करिए अपने कंट्रोल में वो भी हो। You should have full control over each and every point of stretching and relaxation. But relaxation should brings realization of each and every point from tip of the nails up to the head. And when you are practicing stretching, you must feel great joy. And while relaxation, you must have full control over relaxation. Okay, now we will sit. हम बैठेंगे. First, I'm going to speak in Hindi, then in English. No. First in English, then in Hindi. पहले अंग्रेजी मत आए इसलिए कि जब अमेरिका जाते हैं हम, तो हमारे क्लास में जिनको हिंदी नहीं आती वो पूरे घंटे भर हिंदी के क्लास में बैठते हैं। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था। और फिर एक भारत से जा रहे हैं जिनका विचित्र रूप रंग है और उनको इतना प्रेम करते हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है। पूरा हिंदी क्लास में बैठते थे। इसे जब हम अंग्रेजी में बताने जा रहे हैं, जो हिंदी वाले अंग्रेजी नहीं समझते हैं वो कान बंद करके जो वाइब्रेशन सुनते हुए भ्रूमध्य पर एकाग्र हो जाए। सिर से पैर की अंगुली तक की अनुभूति ये विष्णु का साकार रूप है। अगर विष्णु भगवान का साकार रूप है, ब्रह्मा और शिव का अपने आप है। ये आप अभ्यास करिए। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट इन इंग्लिश देन फॉलोड बाय हिंदी। दिस बिकॉज व्हेन आई वाज कंडक्टिंग क्लासेस इन यूएसए, कनाडा, एनीवेयर, I was talking completely in Hindi. I was not knowing English. But I saw in my class, all English knowing people were filled. They have such great patience and tolerance who are the English knowing, especially white race. Therefore, in order to give this understanding to our Indians, I am going to take class first in English, and you have to sit and practice concentration on Bhumad, on head and spine, on head to toes. What you are all gods. God has become your presence. अच्छी तरह से let us try to understand. We are very, very lucky that before Lahiri Mahasaya, before incarnation of Lahiri Mahasaya, pranayama was taught incorrectly by majority, almost by all persons of the world except Kabir Sahib, Guru Nanak Dev Ji, before that Jesus Christ, Moses, and Gautam, Lord Buddha, Mahavir Swami, Sant Ravidas, they taught correct pranayama. But other than them, whatever pranayama was given was incomplete. There was partial truth, but incomplete, imperfect pranayama. If you practice more, you get psychological sickness. Psychosomatic sickness means first sickness will come on mental plane, that sickness will descend in your body. That's called psychosomatic sickness. But Mahavatar Baba, when he realized now people need pranayama, they are not practicing correctly, then he selected Lahiri Mahasaya
He gave Kriyayoga to Lahiri Mahasaya, and from that time, we start understanding about pranayama. And pranayama is the most important work for a human being. When you practice it, you will realize all problems will get solved. Therefore, what is pranayama? Try to understand. That is very important. I have given few practices on pranayama, but I am explaining again. Prana plus ayam. This is how we pronounce. Prana ayama. How we write together. This is the way how we write. But you can write in any style, but you should know what is truth behind this. Prana means this is a consciousness which has power to get transformed into physical universe, astral and causal universe. This physical body is grossified structure of prana. Then we have astral body. Astral body also the same. Gross structure of the prana. What is the causal body is the same. Means prana is having three-dimensional manifestation. That is the gross, visible to our senses. We call it physical. Then astral, which is called the psychosomatic. This astral, you cannot see this astral with your eyes. You cannot listen with the ear. Then causal. Causal means from where this psychosomatic consciousness arises. From psychosomatic consciousness, gross arises. And pran, this is called the pran. We write like this. It is transformed into three. If you practice pranayama, it means you are learning how to create physical body, astral body, causal body. If you are learning the science how to create it, you are the complete engineer. You are going to become complete engineer like Lahiri Mahasaya. He was able to create body. Samyukteswari demonstrated the same. Paramhans Yoganda is demonstrating the same, but nobody knows it. He has become many in gross manifested form, but people are not able to experience now. In the future, they will realize. Therefore, try to understand. Then how to understand ayam means structure and function of prana. What is structure, function? What is the shape and size? What is the properties? Then how to practice it? In order to explain prana, complete teaching of Gita, 18th chapter, complete teaching of Kabir Sahib, Guru Nanak Dev, Sant Ravidas, Lord Buddha, Mahavir Swami, all taught Jesus Christ, Moses, only pranayama. You know, it is not easy to explain pranayama, but it is easy to practice. Why not to practice and feel? Then you will have your own deeper interpretation. Each and every person have its own unique interpretation, but try to go depth into that, you will find the same truth. Like when you see the sky, I see the sky, each and every person see the sky, write an article. Each and every person will have different article. But they feel sky the same. But when we express for language, it changes. In the same way, you can practice pranayama easily, but what is pranayama? It is not easy to explain. Explanation of pranayama means you must explain what is the gross body, astral body, this causal body. It is not easy job to explain this.
It is easy to create it. It is easy to feel it. But to put this knowledge into a spoken language or written language is not easy job. But Samik Tesagiri has done a great job. The biggest writer on this earth is Samik Tesagiri. And he has given about the pranayama. What he is writing? Prana Nam, Sanyama, Pranayama. It must be, let me see. Procedure. Is somewhere, I do not want to give the time to search it. This is the problem, you know. I see everybody, but I don't see it. You see. Page number 71, Sutras 12 to 18. Prana Nam Sanyama Pranayama. Pranayam means, जैसे बाल का नाम, बालक को, प्राणायाम को संयम, प्राणायाम को संयम करना, यही प्राणायाम है. संयम क्या होता है? प्रैक्टिस संयम with pranayama. Sanyama is a technique. Practice sanyama with pranayama. Then that is the pranayam. What is the sanyam? You will find everything in this. You should not have any stress. Whatever I say, you see, the page number 76, sanyama. That is the concentration on self is called sanyama. That is the sutta number 22. Sutra from 90 to 22, page number 75, and page number 76 is written Sanyama. What is Sanyama? Concentration on self. What is the self? Head to toes, what you feel. When you are learning how to concentrate on self and what you feel, accept it is pran. It is the some consciousness what you feel, which has become the gross body, astral body, physical body. This is the pranayama. There is no pranayama what you generally practicing in different ways. If you practice those pranayama different ways, you get psychological sickness. Little bit all right. Little bit practicing Vastika, Kapalbhati and whatever other practices we do it, very short practice is no problem. When you are having dedication in practicing, I will keep on practicing Vastika, Kapalbhati and other breathing exercises, you will get psychological problems. This is the things you should realize. Therefore, what is explained by Swami Kesagiri? Just very simple things. Place concentration of mind on Brahmad, whatever you see in front of Brahmad, whatever consciousness you see in the form of light and darkness, black light or any other light. Do not demand anything else. I want to see that. Whatever you are seeing, accept it is presence of pran. Pran means the knowledge and power which we need to create gross body, astral body, causal body. And in shortest way, whatever we see is presence of Parabram. Okay, all right. We can do it very easily. At the same time, observe breath. What is meaning of breath? Expansion, contraction, phenomena within head to toe. Sometimes breath is too slow, you cannot observe. But you can observe easily how your thoracic area is expanding, contracting. Okay, then practice this also. Concentration on Brahmad, on space in front of forehead. Whatever you see is presence of Parabram in this unique form. Observe a breath. What is the breath? Parabram has become breath. Then feel head and spine, which is very important. This is the head and this is the spine. This is the head and spine. Have awareness of head and spine.
Observe your breath. Concentration on Bhumad. Have oneness with the different vibration what you feel. Feel head and spine. Feel head to toes. All various changes you feel, except only this. We are only experiencing presence of Parabram. Except Parabram, nothing exists. This is called the complete pranayama. Then practice it more and more. Learn how to practice when you are talking, when you are listening, when you are tasting the food, when you are smelling something, when you are using eyes to see, using ear to listen, using leg to walk, using arms to work. You have logical explanation of something, using logic or mental power. During all activities, just practice it, learn it, and you can do it. You have not decided to do it. Decide it, then you can write in bold letter. You will have full control over your body and mind. You will have full control over your life force. There will not be illness, sickness to you. You will not have fear of any kind. You will not feel darkness any moment. You will have no any aversion, attachment. You will not feel likes and dislikes. You will practice God has become all. By this simple practice, you are going to transform your life. This is pranayama. अब आइए आपको हिंदी में बताते हैं. लाहिरी महाशय के अवतार के पहले आध्यात्मिकता तो थी ही. लॉर्ड बुद्धा ने टीचिंग दिया, महावीर स्वामी ने टीचिंग दिया. लॉर्ड बुद्धा के पहले भी अनेक पैगंबर आए हैं. भगवान राम, भगवान कृष्ण सब ने शिक्षा दिया. जितने भी हैं, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, संत रविदास, जीसस क्राइस्ट, मोजेस, अब्राहिम, एक से एक बढ़कर के थे शिक्षक. सब लोगों ने जो प्राणायाम के बारे में सिखाया, लोग समझ नहीं पाए, तो उसको अपने कल्पना शक्ति से जोर घटा करके अभ्यास करने लगे. उसी से लोग कपाल भाती, भस्त्रिका, तरह तरह के श्वास का व्यायाम करने लगे. कहते प्राणायाम है, प्राणायाम का एक अंश है वो. जैसे हम कहते हम तो आम खाए, पता चला आम का केवल ढुपनी खाए. ढुपनी जानते किसको कहते हैं? देखिए, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, मैं सब जानता हूं. आप लोग गांव पैदा नहीं हुए होंगे तो ढुपनी क्या जानेंगे. कहते ना कि कुल आम खाए कि ढुपनी छोड़े. ये है ढुपनी. If you are eating mango, somebody only eating this much. Oh, I have eaten mango. No, you have not eaten mango. You have to consume the complete mango. You have to learn how to eat peel, then pulp. Inside mango there is a seed. Inside seed there is a maximum B12. But what is the shell here? Shell is very hard. You have to boil it. Then you can scissor it. You will find inside this some seed is there. Try to make powder, or you boil it and eat it. Riches in B12. By eating mango means complete consumption of the mango. If a hard shell you cannot eat, you make a soup. Try to drink the soup. In the same way, when you practice pranayama, like breathing exercise, that is incomplete. And when you practice more and more, you get psychosomatic sickness. What is that kind of sickness? I am greater than you. I will give you the lesson. I start comparing good, better, best. This is called psychosomatic sickness. And how to, suppose that you are not sick, you do not have psychosomatic sickness, then what you will say? Each and every creation is greatest, is the highest, is the best, is unique. By observing morphology, external structure, are their properties little bit, whatever we know, we cannot say this is good, this is better, this is the best. That is the important point. Therefore, in all over the world, this is the teaching, good, better, best, loss and gain, virtues and sin. But because this kind of teaching is available, because we are not able to practice correct pranayama, then we are very fortunate. Mahavatar Babaji, how much great love he is having, he selected Lahiri Mahasaya, Yoga Avatar, to practice pranayama and to teach it.
Pranayama means Kriyayoga Meditation. But okay, all right, in this holy science, so nice textbook, there is no name of Kriya Yoga in this. Kriya Yoga is hidden just like a seed. Seed is hidden within mango. In the same way, Kriya Yoga is hidden within each and every letter written in this holy science, within each and every word. Then what is the Kriya Yoga? What is explained Yajna in this? That is the Kriya Yoga. All right, then what is the Yajna? It is very detailed. I'm not going into the depth, but I can say this clearly. Practicing Kriya Yoga means practicing the greatest complete pranayama. What is the pranayama? What is the pran? How we pronounce pran? P-R-A-A-N-A, prana. And this pran is able to transform itself into gross physical body, head to toes, into astral body, psychosomatic structure, what we have inside, and the causal body. Pran is able to transform itself into three structure. If you are practicing pranayama, what is meaning of pranayama? Pran plus ayam. Ayam is structure and function of pranayama. What is structure and function of pranayama? When try to understand pran, it has become gross body, head to toes is gross body. What is structure and function? What you read in medical science, that is incomplete. What is structure of this head to toes? Complete knowledge given in holy science. But whatever is given, I'm not going to explain today that, but try to understand pran has become physical body is one with the astral body is one with the causal body. Therefore, pranayama, how you can practice is structure and function of pran, feel head to toes. What you feel it is presence of pran. Now, how to feel it? Technical thing is given in this holy science. Sutra number in the procedure chapter. You see my nature? Again, I have forgotten. I don't want to remember anything. This is the problem. If I will start remembering, then I cannot take class. Sutra 12 to 18. Prana Nam Sanyama Pranayama. You can read by your own. You take a book. 17th Sutra, procedure. Prana Nam. What is pranayam? Balka Nam. Balak ko. Talking about pran is called prananam. What is a prana? Prananam. Sanjama. Practice sanjam. You are practicing sanjam. That is the pranayama. What is the sanjam? Again, in this you will find. Page number 76. Sutta 22. Sanjama means concentration of the self. When you concentrate on self, this is called sanjama. Become sanjamit. Live life with the sanjam. What does it mean? People think getting up early in the morning, you have to eat at fixed time, you have to sleep at fixed time, everything should be governed by time. This is not sanjam. Sanjam means feel head to toes. Whatever you feel head to toes, try to accept it, that this is the life. Life has become head to toes. Whatever you feel, love it. You are not able to love it, it is a headache. Do not worry. Practice pranayama. You will find headache is knowledge. Then what is the pranayama? Given very clearly, concentration on Brahmad, you should read the Sanjama. Thus, perceiving the man naturally believes in the existence of the true spiritual light and withdrawing himself from the outer world, concentrating himself on the sensorium. This is called sensorium, Brahmad. Concentration of self is called Sanjama. Now you have to place concentration of mind on Brahmad, on space around forehead. Whatever you see, black color, blue color, or anything, except that is presence of Parbrahm.
In this Parabram, you will find past, present, future, everything. Holding this idea, this thought concept, keep on concentrating on this. At the same time, feel breath. How to feel breath? I'm not able to feel breath. It is too slow. Do not worry. Expansion, contraction of thoracic area. This you can feel easily. A time will come, you will not feel expansion, contraction. Then it means you have entered into cervical samadhi. But how to know that I have entered into cervical samadhi? When pulse rate is gone, heart beating is gone, anybody pinches you have no pain, like dead body. Oh, it is very troublesome. Then try to learn how to experience nirvikal samadhi from in awake stage. Because this is the principal practice pranayama. First experience cervical samadhi. Body is like dead. After that, learn again and again how to die at will like this. Then due course of time, you will learn nirvikal samadhi. In that stage, you have not to practice that die condition, death condition. Without that, you can get complete knowledge. Just like as in sleep you are not girl, you are not boy. In deep sleep, you do not know what is age, what is your gender, where is your place, what is nationality, who are you. Complete in deep sleep, everything disappears. If anybody can live in that consciousness awake stage, oh, that is the great. That stage Mahatma Gandhi lived. These masters, they were in that stage, but try to select another person, that is Mahatma Gandhi. Therefore, remember, this is very important. In deep sleep, what you feel, you are keeping yourself away from this gross description. What you are, nationality, position, you are good or bad, nothing. What you feel, something eternal joy. Therefore, everybody try to have deep sleep. But by practicing Kriyayoga again and again, you will learn how to practice deep sleep when you are walking, when you are talking, when you are working. In that condition moment you learn, we will work to make a change on this earth. Because in that condition you will never practice comparison. Whenever you talk with somebody, that person will be charged with the singularity. They have come to the point, what is the pranayama? What is plain in holy science? Try to place concentration of mind on Brahma, on space in front of forehead. Whatever you see, Parabram alone exists. Parabram has become this. Parabram has become breath. Parabram has become this phenomena, expansion, contraction. All right at the same time. Feel head and spine. At the same time, feel head to toes. Each and every change is what you feel. Is presence of Parabram. At the same time, you start experiencing some holy vibration. What you experience when you close your ears. Then by concentrating on that sound waves and on that aura, whatever you see, different varieties of the light, and observing breath, feeling head and spine, head to toes. In this way, when mind is placed in so many places, on Brahmad, on holy vibration, on head and spine, on head to toes, on changes. Whatever you feel, it is Parabam. That is the pranayama. This practice will never create any psychosomatic sickness. You practice 1 hour Hastika, you will lose your balance. Practice 1 hour Kapalbhati, you will lose your balance. In this, when you practice pranayama, you will increase your balance. It is not mistake of those persons who taught pranayama incompletely because they were not knowing anything. Our human nature is to teach without knowing. Therefore, you see example of Paramahansa Yogananda. He never started teaching the Kriyayoga until he reached to that stage. He was knowing Kriyayoga from the childhood, but from the year 1916, he first discovered science of recharging, what we practice. Then he discussed with the Krishagiri. Many persons, they cannot practice asana, it is so tough. Then he discovered recharging.
in 1916 and what we practice every day, then that recharging practicing is very, very effective. If practice correctly, will find our body charged with the presence of peace and joy. Therefore, this recharging and whatever other practices you do, each and every practice is practicing pranayama. But you want to practice all in one, just sit in a chair or on ground anywhere, concentrate on Brahmad, on different color radiations, locate head and spine, observe breath, feel head to toes, appreciate all changes. Whatever you feel, each and every perception is presence of Paramam. This is called practicing pranayama. Many practices are given. I'm not going to give practice now. Evening class, I will try to give again one practice. प्राणा नाम जैसे बाल का नाम, इतना तो हम लोग संस्कृत आती होगी ना, बालका बालका बालका, ऐसे फिर द्वितीय में आ गया बालका नाम संयम प्राणायाम। लाहिड़ी महाशय के अवतार के बाद प्राणायाम का अभ्यास एकदम ठीक होने लगा। इसके पहले जो भी प्राणायाम का अभ्यास लोग करते थे, जो विष्णु के अवतार लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीर स्वामी, ये सब जो सिखाए थे लोग भूल गए। वही चीज कबीर साहब, गुरु नानक देव जो भी वही सिखाए वो भी लोग भूल गए। उसी चीज को जीसस क्राइस्ट, मोजेस, अब्राहिम, ये सब वही सिखाए, भूल गए लोग। जब सब भूल गए, जबकि सिखाने वाले इतना प्रेम नहीं करते थे, जब तक अनंत प्रेम न करिए हम सिखा नहीं सकते। तो जो शिष्यों ने सीखा इन मास्टर से, अपने गुरु की इतना प्रेम नहीं करते थे वो। जैसे कबीर साहब के शिष्य कबीर को कितना प्रेम करते थे, आपको पता है? जब कबीर साहब शरीर छोड़ दिए तो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हुई। हिंदू कहते हम जलाएंगे, मुस्लिम कहते हम दफनाएंगे। झगड़ा ऐसी मच्छी पूछे नहीं। तो लाहिड़ी माँ से जी गए, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे गुरुदेव, ये कहते जलाएंगे, कहते दफनाएंगे, कहते चलो हमको चद्दर से ढक दो, फिर जो मिले आधा जलाओ आधा दफनाओ। तो चद्दर से ढक दिए, पूरी शरीर फूल में बदल गई। तो आधा फूल जलाए आधा फूल दफनाए, तो कितना कबीर को मानते थे, कल्पना करिए। अरे कहना चाहिए था गुरु झगड़ा खत्म, अब तो आप जी गए हैं। कोई माँ हो, दो बेटों को बहुत मानती हो, तो और माँ के मरने के बाद बेटे प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करें, ये गहना कौन लेगा, जमीन कौन लेगा, ये कौन लेगा, वो कौन लेगा। इतना झगड़ा मचे का मार ही डालेंगे एक दूसरे को। फिर माँ जी जाए, बेटे तुम क्यों लड़ रहे हो? अरे माँ, हम चाहते कि गहने का बंटवारा हो जाता, जमीन का बंटवारा, तो झगड़ा खत्म हो जाता। कहते अच्छा ठीक है, हमको फिर से ढको, हम मर जाएंगे तो यहाँ कुछ प्रकट होगा, उसको जब छूना तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, फिर बंटवारे में झगड़ा नहीं होगा। बड़े खुश हो गए, ढक दिए, वो रत्न प्रकट हो गया। तो क्या दोनों बच्चे माँ को मानते थे? नहीं, माँ को मानते, जिंदा हो गई। अरे अब झगड़ा खत्म माँ, बिल्कुल, अब तो हमको कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गई हो। ऐसे क्या कबीर साहब को शिष्य लोग माने? नहीं मान पाए। गुरु नानक देव जाते थे तो उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। जिसके यहाँ जाते थे उसी की तरह कपड़ा पहनते थे, जिससे उनमें मिक्स हो जाए। तो कितनी जगह पर गए, कितना रीति रिवाज, उतना कपड़ा बदलते गए, तो उनका नाम बहुरूपिया रख दिया। कितना उनको टॉर्चर किए, आप नहीं समझ सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी को मानने वाला कोई शिष्य ही नहीं मिला। कबीर साहब के जो बेटा थे, जो कबीर साहब कोई पद्य लिखे तो उनका बेटा ठीक उल्टा लिख दे। उसका नाम था कमाल। जब कबीर साहब ने कहा कि दो पाटन के बीच में साबित बचाने को
कहते नहीं नहीं, साबित बचता है, दो पाटन बीच में जब चक्की चलती है तो जो गेहूं होता है बीच में धुरी के पास वो नहीं पिसता है। तो अलग कविता बना दिया वो, जो कबीर साहब का है उसका उल्टा बना दे। तो न तो कबीर साहब को प्रेम करने वाला कोई मिला, न तो गुरु नानक देव जी को, न तो महावीर स्वामी को, न तो बुद्धा को। ऐसा कोई प्रेम करने वाला नहीं मिला जो इनको वैसे ही रिप्रेजेंट कर सके। जीसस को भी नहीं मिला, मोजेस को नहीं मिला, अब्राहिम को नहीं मिला। तो लेकिन ये आवश्यक है कि लोग सही ज्ञान मिले। तो द्वापर युग के लगते महावतार बाबा जी शुभ समय जान करके अब लोग ज्ञान चाहिए, लाहिड़ी माँ से अवतार लिए, उनके माध्यम से प्राणायाम का अभ्यास दिए। क्रियायोग क्या है? ये कंप्लीट प्राणायाम है। बहुत मजे की बात है, उस प्राणायाम को कैसे लिखा जाए, ये होली साइंस। ये प्राणायाम की पुस्तक है क्रियायोग की। ये कहीं पर भी आप देखेंगे तो क्रियायोग नहीं मिलेगा, लेकिन प्राणायाम मिलेगा। तो प्राणायाम है क्या? यज्ञ का अभ्यास प्राणायाम है। इतने लंबे चौड़े में नहीं आते हैं। आप प्रोसीजर के सूत्र नंबर 17 में आप देखिएगा, ये प्रोसीजर देखिए, फिर हम भूल गए। हमको भूलने में बड़ा मजा आता है। अगर भूलेंगे नहीं फिर नई चीज याद कैसे करेंगे हम? आप पता है जब अमेरिका में क्लास लेता था यूनिवर्सिटी में, तो जिस कमरे में जाता था उसी कमरे में जाना हमको पता है, लेकिन रोज मैं भूल जाऊं कमरा कहाँ, दरवाजा कहाँ है। तो एक प्रोफेसर हमको एस्कॉर्ट करते थे। तो हम क्या, आपको पता नहीं चलता कौन भारत से आया है, पढ़ाता है क्रिया योग साइंस, उसको ये नहीं पता दरवाजा किधर है कमरे का? कहते नो आई नो योर कंडीशन। तो हम कहे चलो बहुत अच्छा है, अमेरिकन समझते हैं। भारत में होते तो हमको बहुत ही उल्टा सीधा कहते। अमेरिका की हम तारीफ इसलिए करते हैं, इस आश्रम का आधारशिला अमेरिका ने दिया है। एक घूंट पानी में पिया है अमेरिकन के ट्यूबवेल लगाने से। कुछ भी यहाँ पर जो शुरुआत फाउंडेशन हुई है अमेरिकन से हुई है। यहाँ पर स्वामी शांतानंद जी अमेरिकन है, इनका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है। देखिए ये सूत्र नंबर 12 से 18, प्राणानाम संयम प्राणायाम, प्राणानाम संयम प्राणायाम। प्राणायाम को संयमित करना, प्राणायाम के प्रति संयम का अभ्यास ही प्राणायाम है। संयम क्या है? इस पे आपको अगले पेज पर मिलेगा, पेज नंबर 76, सूत्र 23 के पहले संयम दिया हुआ है। देखिए हिंदी में क्या दिया है। हिंदी में अनुवाद गलत ही होगा हमको लगता है। आप लोग बोर मत होइए, ऐसे हम खोजते रहते हैं। देखिए पेज नंबर 96, सूत्र नंबर 23 के पहले, इस प्रकार दर्शन कर लेने के बाद मनुष्य स्वाभाविकता ईश्वर के प्रकाश के अस्तित्व में विश्वास करता है और अपने आप को बाह्य जगत से पूर्णतः वापस खींचकर सुषुम्ना द्वार पर ध्यान एकाग्र करता है। इस आत्म एकाग्रता को संयम कहते हैं। कहाँ समझ नहीं पाएंगे आप लोग, फिर से पढ़ते धीरे धीरे। इस प्रकार दर्शन कर लेने के बाद, कौन सा दर्शन कर लेने के बाद? भ्रूमध्य के सामने जो देखते हैं, जो प्रकाश अंधकार, इसको देखते हुए शरीर का अनुभव करिए। तो एक समय आएगा ऐसा लगेगा ये प्रकाश के गोला में शरीर बैठी है, फिर लगेगा ये शरीर प्रकाश के गोले का तीव्र रूप है, इसका जो ग्रॉसनेस है खत्म ही हो जाएगी। उस समय पता चलता हमारा सेकंड बर्थ हुआ है, फिर पता चलता हम ईश्वर की संतान है, हम मानव नहीं है। इसकी चर्चा हो रही है। अपने बाह्य जगत से पूर्णतया वापस खींचकर, बाह्य जगत गायब हो जाता है। जय जानत जग जाय हराई। बाह्य जगत क्या है? हाथ है, ये पैर है, ये
जब आप भ्रूमध्य पर एकाग्र होकर के ये जो कुछ दिखता है इसमें पूरा एकाग्र होकर के सिर से पैर की उंगली तक अनुभूति करते हैं, तो करते-करते एक दिन ऐसा आता है, जो आप देख रहे हैं आँख बंद करके, पता चलेगा इसी का एक गोला बन गया है। उसी में शरीर ये बैठी हुई है और शरीर उस गोले का तीव्र रूप है वो। इस समय बाह्य जगत गायब हो जाता है। ये सब चीज़ ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ेंगी। पेट के अंदर की नसों को देख लेंगे आप। ये स्थिति प्राप्त होती है और उसी समय हम सुषुम्ना द्वार में होते हैं। अपने सिर और रीढ़ के अंदर ये देखिए जो पहला चैनल इसको सुषुम्ना कहते हैं। फिर ये स्वाधिष्ठान से दूसरा चैनल आता है ये बज्रा है ये। फिर मणिपुर चक्र से तीसरा आता है, ये चित्रा नाड़ी। इस तरह 3 नाड़ियां हैं। तो पहली नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। जब मन हमारे सुषुम्ना में एकाग्र होता है तो ऐसे लगता है हर चीज ट्रांसपेरेंट हो जाती है। इस एकाग्रता को संयम कहते हैं। आप बताइए कैसे समझेंगे? नहीं समझेंगे ना। जब अपने पति अपने बीवी को इतना प्रेम करे, उन्हीं को मान ले भगवान है, और बीवी पति को मान ले भगवान है, और माता पिता बच्चों को मान ले कि यही भगवान है, और बच्चे मान ले कि यही हमारे भगवान है। इस तरह प्रेम आच्छादित होकर के जब सेवा करते हैं तब आपको सच दिखाई पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। तो भ्रूमध्य पर मन स्वतः एकाग्र हो जाता है। चलिए इतना प्रेम करने की आशा मत करिएगा, ऐसा जल्दी संभव नहीं है। फिर देखिए ये संयम हुआ ये। अब भाई प्राणायाम हम बताते हैं क्या है। तो मन को भ्रूमध्य पर एकाग्र करके श्वास दर्शन करते रहिए। थोड़ी देर के बाद श्वास पता ही नहीं चलेगा, तो सीने का फूलना और पिचकना अनुभव करिए। सिर से पैर की उंगली तक अनुभूति करिए, जिसमें सिर और रीढ़ पर विशेष ध्यान दीजिए। जो अनुभव हुआ वही परब्रह्म है, वही ज्ञान है, वही शक्ति है, वही शांति है, वही आनंद है, सब कुछ वही है। ये अभ्यास करना प्राणायाम है। कितना आसान, लेकिन आप करते नहीं हैं, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं कि देश ठीक हो जाए। कहाँ रहेंगे आप इस देश में? अगर देश ठीक नहीं हुआ, अमेरिका तो वैज्ञानिक आविष्कार के उच्चतम स्थिति पर है, लेकिन बहुत दुखित है। उस विज्ञान के मेडिकल साइंस का असर नहीं हुआ। कितने लोग कोरोना में मरे? लोग कहते हैं हाँ 60 लाख भारत में मरे। 60 लाख लोग कोरोना से भारत में मरे। ठीक है, हम मानते हैं मरे। हमारे यहाँ विज्ञान तो था ही नहीं, मेडिकल साइंस भी नहीं है, ये सब चीजें नहीं थी, तो यहाँ मरना स्वाभाविक है। अमेरिका में तो सब चीजें था, वहां इतने क्यों मर गई? तो इसका मतलब कि अमेरिका, ये सब देश जो पश्चिम के देश है, विज्ञान के उच्चतम सीमा पर जो पहुंच गए हैं, वहां शांति क्यों नहीं है? ये सब क्या है? सारे देश भारत के बच्चे हैं। ये बच्चे केवल सुखी हो जाए, माँ सुखी न हो तो बच्चे सुखी नहीं होंगे। इसको मदर इंडिया कहते हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी के देश ठीक होए, हम आपको भविष्य कर रहे हैं। हमारे शरीर छोड़ने के पहले सब हो जाएगा। ये इस देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा, सांप्रदायिक लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। हर व्यक्ति ऑलमोस्ट अनुभव कर लेगा कि हमको बीमारी से दूर करने के लिए क्रियायोग पर्याप्त है। किसी दवा को ज्यादा खा करके लीवर नहीं खराब करेंगे, किडनी नहीं खराब करेंगे, सब हो जाएगा हमारे जाने के पहले। अब विश्व के सभी राष्ट्रों में एक ऐसा मीटिंग होगी, कोई राष्ट्र हथियार नहीं बनाएगा, बेचेगा नहीं, और भारत राष्ट्र के सभी जगह पर लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। हम यहाँ पर आईएएस आईपीएस नहीं चाहते हैं, यहाँ कोई न्यायपालिका नहीं होगी, कोई वरिष्ठ नहीं चाहते हैं। ये सब हमारे जाने के पहले हो जाएगा। और कौन कराएगा? हम आप मिलके। आप बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता नहीं है। आपकी क्षमता कितनी आपको नहीं पता, हम आपको याद दिला रहे हैं। हमको आपको मिल करके ये करना है। इसे प्राणायाम विषय में जो आपने समझा, इसका अभ्यास भी दिया गया है। शाम को अभ्यास देंगे हम, शाम को रिचार्जिंग के ठीक बाद हम आपको प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे। आप ये मिस मत करिएगा क्लास। अब आइए, इतना सब चर्चा हो ही गई, भारत के बारे में थोड़ा सा और बता दें। आपके भी बता दें, हम अपने नेचर में हम सभी देशों का हम समझते हैं देशवासी हैं, लेकिन अमेरिका को बहुत इसलिए मानते हैं। विवेकानंद को पहली बार मंच मिला वहां शिकागो में, जिन्होंने घोषणा किया कि हम सब कुएं के मेंढक की तरह हैं, अपने अपने धर्म को बड़ा कहते हैं।
उन्होंने कभी नहीं कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू की परिभाषा दिया, हिंदू का वास्तविक रूप क्या है। हिंदू धर्म का अभ्यास कराया जीसस क्राइस्ट ने, जिसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं। इसी हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता था। उसी धर्म का अभ्यास सभी पैगंबर ने कराया। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था, ये भी कहा था कि सभी लोग यहाँ पर जो है पूरी दुनिया में अपने अपने धर्म को कहते बड़ा है, बाकी बड़ा नहीं है, सब कुएं के मेंढक की तरह है। अगर हम हिंदू लोग भी कहते हैं कि हमारा हिंदू बड़ा है, इस्लाम नहीं है, हम भी कुएं के मेंढक की तरह है। इस्लाम है क्या? कोई भी मुस्लिम इस्लाम के बारे में जानता नहीं है। हमको तो आज तक कोई नहीं मिला कि कोई मुस्लिम इस्लाम को जानता हो। इस्लाम के बारे में कौन जानते हैं? अच्छा, हिंदू जानते हैं। इस्लाम है क्या? देखिए, जो कुछ हम देखते हैं, कहते नहीं कि लामे कहाँ जावा, बहुत लामे जाके बा भाई। लामे, लामे का मतलब दूर। जो दिखाई पड़ता है ये आप, ये सब बहुत लामे है, दूर है, सही नहीं पता है। इस सत्य को जानने वाले को इस्लाम कहते हैं। जो जगत में दिखाई पड़ता है ये वो नहीं है, कुछ और है। इसको जानने वाले को कहते हैं कि इस्लाम को फॉलोवर है। और ये इस्लाम को मुसलमान कहते हैं, मुसल्लम ईमान, जो पूरी तरह से ईमान में हो। ईमान में कौन होगा? जो कभी मारेगा नहीं, न चिड़िया काटेगा, न मछली काटेगा, न कोई जानवर काटेगा, लेकिन ये बकरीद मनाते हैं। ये मुसलमान है ही नहीं, इस्लाम के फॉलोअर नहीं है, इसलिए तो झगड़े हैं यहाँ पर। तो सनातन धर्म में क्या कहता है? हम आज हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। जब आगे भी रहेंगे तो मारते क्यों हैं? हमारा स्टमक कब्रिस्तान नहीं है। हमारी पृथ्वी इतना बढ़िया फल और अनाज देती है, उससे अपनी भूख हम मिटा सकते हैं। बकरा और मुर्गा और मछली काटने की क्या आवश्यकता है? पता चला कि भैंसा काट रहे हैं, गाय काट रहे हैं, बकरा काट रहे हैं, भेड़ काट रहे हैं, मछलियां निकालते छटपटाती हैं, मर जाती हैं, हम उसको खा रहे हैं। लगता है कब्रिस्तान है हमारा स्टमक। इसे याद रखिए, मोहम्मद साहब ने कहा था, अगर हम किसी का भी खून करते हैं तो खुदा माफ नहीं करेगा, जिसका खून किए वही माफ करेगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मानव या जानवर। तो अगर हमने मछली का खून किया, उसको मारा, तो खुदा माफ नहीं करेगा। हम मछली को पकड़े, कहाँ गई आत्मा, उससे माफी मांगे। तो सच्चा सनातन धर्म ही ये मुसल्लम ईमान होता है, पूरा ईमान से होता है। तो ये है वास्तविकता। जब आप गहराई में आएंगे तो पता चलेगा सनातन धर्म का ही शिक्षा जीसस क्राइस्ट ने दिया, मोसेस ने दिया, इब्राहिम ने दिया। इसी की शिक्षा मोहम्मद साहब भी दिए थे, लोग समझ में नहीं आया, इसलिए मार काट मचा हुआ है। इसी की शिक्षा कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, लॉर्ड बुद्धा, महावीर स्वामी, सभी वही दिए थे और कुछ भी नहीं। तो फिर ये सब चीजें अगर जानेंगे नहीं तो कैसे देश बदलेगा? भारत एक ऐसा देश है, इसको पूरी दुनिया के सभी देश बहुत प्रेम करते थे। कितना प्रेम करते थे कि आप पूछिए नहीं। यही समुद्र ऑस्ट्रेलिया को छूता है, यही समुद्र भारत को छूता है। विश्व के सभी देशों ने कहा कि हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है। किसी ने नहीं कहा कि ऑस्ट्रेलियन ओशन है। हमारे जो भारत से लगा हुआ जो समुद्र है, ये और देशों को भी तो छूता है दूसरी तरफ। सब देशों ने कहा नहीं, ये हिंद महासागर है। किसने कहा हिंद महासागर है? हम भारत के लोगों ने नहीं कहा, विश्व के सभी राष्ट्रों ने कहा। और कहा कि ये जो भारत है, एक राष्ट्र नहीं, ये महाद्वीप है, ये कॉन्टिनेंट है। ये तो इसको किसने कहा? विश्व के सभी राष्ट्रों ने कहा। जब भारत इतना अच्छा, तो इसकी जिम्मेदारी है हम सभी देशों की सेवा करें। कैसे सेवा करेंगे? जब आप प्राणायाम का अच्छा अभ्यास करेंगे तब पता चलेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम भारत के बड़े ज्ञानी हैं। ठीक है, हम ज्ञानी तो थे और ज्ञान अंदर में है भी, छिपा है। अब क्रिया योग से इसको हम जगाएंगे। जैसे जैसे ज्ञान जगेगा, पूरी दुनिया अपने आप ठीक होगी। हम इस उदाहरण को फिर से दोहरा रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कहने की जरूरत नहीं है, केवल हिंदी वाले जाने। मान लीजिए कि ये 1, 2, 3 और 4, एक परिवार में 4 लोग हैं, चारों झगड़ गए। यहाँ क्या है? पुलिस स्टेशन है। चारों झगड़ गए क्योंकि इसमें से जो नंबर 3 वाला था,
ये सारा पैसा चुरा लिया था, सबको दिया नहीं। तो इसमें हो गई झगड़ा, तो गया ये थाने पर गया, एफआईआर किया। एफआईआर करके इनको 2 लाख रुपया दे दिया इंस्पेक्टर साहब को कि एफआईआर लिख दीजिए। तो इंस्पेक्टर के नियम है, कोई एफआईआर करने जाए तो आप जरूर लिखिए, भले जांच में आप कह दीजिए गलत, लेकिन लिखना अनिवार्य है, इनकार नहीं सकते एफआईआर लिखना। तो लिख लिया, 2 लाख रुपया भी मिला। और पता चला कि इन तीनों को कर दिया जेल। आज शनिवार को एफआईआर हुई, संडे को कोर्ट खुलता नहीं, एक दिन गए जेल में। अब पता चला कि ये जो जाकर के पुलिस स्टेशन में गए, तो इंस्पेक्टर साहब को कहाँ पता था कि किसकी गलती है। यहाँ पर माता पिता हैं या घर के परिवार के लोग हैं, इनको पता है ना कि गलती क्या हुई, ये चारों बच्चे क्यों लड़ रहे हैं, ये जानेंगे क्या गलत क्या सही है, इंस्पेक्टर कहाँ जानेंगे। फिर वहां से केस गई सिविल कोर्ट में। अब सिविल कोर्ट में गए, ये फिर उसको दे दिए 2 लाख, क्योंकि पैसा तो चुराए ही थे। तो वकील कहते अरे अच्छा हुआ आ गया, 50,000 का हमें अभी किराया देना था, घर का बाकी था, बच्चों की फीस थी। अरे ईश्वर बड़े भाग्यशाली, केस आ गई, लेकिन केस जीतेंगे तो नहीं। तभी झूठ बोलते हैं कि हम केस जिता के रहेंगे हम। 2 लाख उनको गया। तो ऐसी न्यायपालिका की हमें आवश्यकता नहीं, इस देश में बैरिस्टर नहीं चाहते हैं। हम बैरिस्टर खुद ही अपने, हमारे परिवार के माता पिता हमारे बैरिस्टर हैं, परिवार के सारे लोग वही बैरिस्टर हैं, वही हमारी न्यायपालिका है, वही हमारे थाना पुलिस है। अब बताइए सिविल कोर्ट के बाद इतना पैसा चुराया था, हाई कोर्ट भी गया, और लड़ते लड़ते यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, वहां पर तो फीस बहुत अधिक है, 4-6 लाख में वहां कोई बात नहीं करता है। तो हम ऐसा देश को क्यों चाहते हैं? इस देश में हमें बैरिस्टर नहीं चाहिए, आईएएस आईपीएस नहीं चाहिए, हम घर में खुद ही अपना निर्णय कर लेंगे। हाँ, एक ऐसा चाहते हैं कि पूरे देश के लोग एक ऐसा यूनिट बनाएं कि किसी के पास लाइसेंस ना हो, कोई आतिशबाजी में बम फोड़ने वाला चीज ना बनाए, किसी के पास बंदूक ना हो, कोई कट्टा ना बनाए। अगर ऐसा है तो सब लोग उसको देश निकाला करके एक जगह बैठा दे, उससे कोई मिले ना, यही दंड दे। मान ले घर में कोई गलती किया, नियम हो जाए कि घर के, गांव के, समाज का कोई भी आदमी उससे बात नहीं करेगा, तो सुधर जाएगा वो। अगर कोई किसी से बात ना करे, आप अकेले हो जाइए और पता चल जाए कि आपकी फोटो चिपका दी गई किसी चाय की दुकान पर, किसी होटल में, किसी सड़क पर, किसी बस में, किसी ट्रेन में, कहीं पर भी आपसे कोई बात नहीं करेगा, आप कोई देख ले मुंह इधर कर ले, आदमी बदल जाता है। लेकिन मारपीट ना करे। इस तरह की न्यायपालिका की आवश्यकता है यहाँ पर। लेकिन हम लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारा बेटा कलेक्टर हो गया, अरे हमारा बेटा दरोगा हो गया। घर ही के दरोगा, तो फिर कहना क्या, पड़ोसी वाले को बताते हैं हम, कहते नहीं संयम है कोतवाल तो डर काहेगा, अरे कोतवाल साहब जेल चले जाएंगे। ऐसे भारत का बनाना बहुत आसान है, बशर्ते कि आप प्राणायाम करिए, आपके अंदर प्रेम प्रकट हो जाए, किसी के प्रति घृणा न रह जाए। किसी का दोष नहीं है, गलत शिक्षा नीति है, गलत न्यायपालिका है, ये सब चीज गलत है। अब सब लोग कहते करें न्यायपालिका न होती तो क्रिया आश्रम न बचता। अगर न्यायपालिका न होती, पुलिस थाने न होते, तो कोई झगड़ा करता ही नहीं हमसे, हमसे कोई झगड़ा नहीं करता है। हाँ ठीक है, मानते हैं न्यायपालिका की वजह से हमारा आश्रम मजबूत है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारे आश्रम पूरी तरह सुरक्षित किए रहता है। हम उनको नहीं जानते तब भी हमको मानते, ये खास बात है। हमारा किसी जज से कोई ऐसा अंतरंग परिचय कभी नहीं था, लेकिन हमको सब मानते बहुत हैं, जैसे आप मानते हैं। तो आप हमें इतना ध्यान तो कर नहीं पाएंगे आसानी से, टाइम लगेगा। ईसाई हम लोग मिल करके खूब अच्छा प्राणायाम करें, अपने को निर्भय कर दे, घृणा से रहित कर दे, जीवन शिकायत रहित हो, कंप्लेन रहित हो, किसी कंप्लेन ना हो। कोई हमको गाली दे तो हम उसको गाली न दे, उसको बीमार समझे, खूब बढ़िया से उसको बैठा ले, हाथ पैर की मालिश कर दे, बढ़िया खाना खिला दे, उसका हाल चाल ले ले, उसका कपड़ा साफ कर दीजिए। कभी नहीं झगड़ा करे कि तो बीमार है ना इसलिए गाली दिया, बीमार है इसलिए वायलेंस कर रहा है। वायलेंस करना,
गाली गलौज करना साइकोसोमेटिक सिकनेस है। जो आदमी बीमार है उसको आप क्यों परेशान करेंगे? कि बीमार से तो प्रेम करना चाहिए, प्रेम करने का तरीका यही है, अंदर से प्रेम करिए, उसको देखिए तो खुश हो जाइए, आंखों से देख करके घूरिए मत। ऐसे भारतवर्ष का निर्माण करना है, तो आप देखेंगे इसी के साथ साथ होगा क्या, सभी राष्ट्र अच्छे होंगे। ये भारत माँ अपने बच्चों को ऊपर उठाते हुए खुद ऊपर उठेगी। ऐसे देश की आवश्यकता है। ये आज के लिए है। आइए हम लोग 5 मिनट प्राणायाम कर लें। Now we are going to practice 5 minutes pranayama together. आंखें हम बंद कर लें। Let us close our eyes. सच क्या है पकड़ लें। Practice oneness with the truth. केवल परब्रह्म का अस्तित्व है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। परब्रह्म alone exists. Whatever we see, whatever we observe, whatever we feel, all are manifestations of परब्रह्म। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, जो कुछ हम अनुभव करते हैं, ये सब कुछ परब्रह्म की उपस्थिति है। सिर से पैर की अंगुली तक ये हाड़ मांस नहीं है, ये कोशिकाओं की बनी है, ये अधूरा ज्ञान है। ये अणु परमाणु की बनी है, ये भी अधूरा ज्ञान है। तो सिर से पैर की अंगुली तक हम जो अनुभव करते हैं, निराकार परब्रह्म की अलौकिक उपस्थिति है। Feel a head to toes, presence of head to toes is presence of body, bone and muscles, cells and tissues, atom and molecules. This knowledge is incomplete. What is the true knowledge? Head to toes we feel is presence of Parabrahma. दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें. Place both palm on the posterior surface of head. Locate a head and spine. सिर और रीढ़ कहाँ है अनुभव करें. सिर से पैर की अंगुली तक सब में एकाग्रता बढ़ाएं. Increase intensity of awareness, concentration on head to toes. Presence of head to toes, various changes within we feel, and breath is presence of Parabrahma. Keeping eyes closed, place concentration of mind on Bhumadhya, on space around forehead. Whatever we observe in this space in front of forehead, in head and spine, in head to toes, changes within we feel, is presence of Parabrahma. In Parabrahma there exist all things, past, present, future, of all creations. आंख बंद रखते हुए भ्रूमध्य पर मन को एकाग्र कर लें. भ्रूमध्य के सामने जो देख रहे हैं वह प्रत्येक श्वास, सिर और रीढ़, सिर से पैर की अंगुली तक के पूरा अस्तित्व, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, ये परब्रह्म की उपस्थिति है. याद रखिए परब्रह्म में सब कुछ निहित है. अतीत, वर्तमान, भविष्य, ब्रह्मांड के अस्तित्व का अतीत, वर्तमान और भविष्य जितनी रचनाएं हैं, इनका अतीत अस्तित्व, वर्तमान और भविष्य जो अनुभव कर रहे हैं,
ये सब कुछ इसी अनुभूति में विद्यमान है। फिर हाथों को ऊपर उठाए, रेज आर्म्स अप। इस समय जो अनुभव कर रहे हैं, इसी अनुभूति में सब कुछ निहित है, ऐसा सोचें। अतीत, वर्तमान, भविष्य, पूरे ब्रह्मांड का जितने पैगंबर अवतार हुए हैं, वो सब अनंत शक्ति, ज्ञान, शांति, परम आनंद, सब कुछ इसी अनुभूति में निहित है। रेजिंग आर्म्स अप, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम ऑल्टरनेटली। मुट्ठी बंद करें, खोलें, हाथों को ऊपर नीचे लाएं, मूव आर्म्स अप एंड डाउन। सिर से इस तरह से भावना, विचार और धारणा बना करके रखें और स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। रिमेंबर दिस अगेन एंड अगेन। Whatever we feel, whatever we perceive when eyes are closed, whatever we feel within head to toes changes within. Whatever we realize, accept this, each and everything is presence of Parbrahma. Parbrahma alone exists. Within Parbrahma there exist all things, all prophets of all ages and line. The creations with their past, present, future all exist within this what we feel. Then close ears with the help of thumbs. You can take help of meditation stand or without meditation stand. Many times we hear the sound vibration without closing ears. Keep on listening the sound waves of various frequencies. At the same time, observe the breath, concentration on space around forehead, on bhrumad, on head and spine, on head to toes changes within. Whatever we feel, presence of Parbrahma. आंख बंद रखते हुए माथे के सामने जो देख रहे हैं देखते रहें, श्वास अनुभव करते रहें। सिर और रीढ़, सिर से पैर की उंगली तक की रचना, इसमें होने वाला परिवर्तन, उसी के साथ साथ हाथ के अंगूठों से कान को बंद कर लें या ध्यान के स्टैंड के सहारे बंद करें। ऐसा करने पर जो सुनते हैं वह, कभी कभी तो ऐसा होता है बिना कान बंद किए ही वो सुनाई पड़ता है, तो उसी के सुनते ही अपनी एकाग्रता स्वरूप में बढ़ाते जाए। जो अनुभव हो रहा है ये परब्रह्म की उपस्थिति है। यही प्राणायाम का अभ्यास है। This practice is practicing pranayama, is practicing Kriyayoga meditation. If you want, you can take help of meditation stand and absorb in this consciousness what we feel. अगर आप चाहते हो तो 2 मिनट के लिए स्टैंड के सहारे बैठ जाएं और कान बंद करके अपने अस्तित्व में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। जो कुछ हम अभ्यास कर रहे हैं, इसी अभ्यास को कैसे हम कर्म करते हुए करें, बोलते हुए, सुनते हुए, देखते हुए, पैरों से चलते हुए, हाथ से काम करते हुए, अभ्यास करते करते स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा कि इसका अभ्यास हमेशा कैसे करें। The practice we are doing, we have to learn to practice it while working.
while walking and running, working with the arms, using eyes to see, using ears to listen, using mind and reasoning power. During all activities, we have to learn how to practice this. Then we will be in position to raise all nations along with the great spiritual nation, India, Bharat. जब इस तरह से हम काम करते अभ्यास करने में सक्षम हो जाएंगे, तब हम विश्व के सभी राष्ट्रों को भारत के साथ ऊपर उठाने में सक्षम होंगे। अब हम पैर को हिलाते हुए याद रखें, परब्रह्म की उपस्थिति इस तरह से है। Try to move right, left leg. Try to have this thought. Parabram is manifesting in this unique form which we are moving. हाथों को भी हम हिलाएं डुलाएं, कड़ा ढीला करें. Try to move arms right and left. Try to move them. दाहिनी और बाईं पीठ हम कड़ा ढीला करें. Turn legs back, right and left. पेट अंदर, सीना चौड़ा, abdomen in, chest out, गला, चेहरा, सिर, neck, face, head. पैर की अंगुली से लेकर सिर तक सब में एकाग्रता बढ़ाएं। फिर से हम 2 बार में श्वास प्रश्वास के साथ सिर से पैर की अंगुली तक इसे विधिवत अनुभव करें। इस भावना विचार धारणा के साथ ये परब्रह्म की अनुभूति है। अगेन प्रैक्टिस डबल ब्रीदिंग with the perception of head to toe changes within, with the true idea, thought and concept that what we are experiencing is presence of Parbrahma. Now let us bow down to our devotion in Kriyayoga Meditation, which is Complete Pranayama, which is Yajna. This practice will transform this earth. We will find everywhere peace and joy. ये अभ्यास पृथ्वी के वातावरण को बदल देगा। हर जगह शांति, हर जगह आपस में एकता और समृद्धि अनुभव होगी। अब हम बैठेंगे। नाउ वी विल सिट। आंखें खोलें, ओपन आईज। किसी को सचमुच में मिलना हो तो वही आए। जो हमको इतना प्रेम करते हैं कि उनके अंदर हम है, वो मिलन कर, हमको आने की जरूरत नहीं है। तो देखता हूँ कौन कम प्रेम करता है, वही आएगा। If really you need to meet, then you come. Otherwise, try to demonstrate this in your perception. I am there. You do not need to come and meet. तभी हम बैठे हैं, 5 मिनट बैठेंगे।